ہمارا پروگرام شروع ہوتا ہے اب، اور میں یہ تحریر پڑھ رہی ہوں جو کہ سمینا نے سینڈ کی ہے، تو میں سٹارٹ کرتی ہوں۔ جی، عمومی طور پر جماعت نے یہ تاثر دنیا پر قائم کیا ہے کہ خواتین کو جو حقوق انہوں نے دے رکھے ہیں وہ کسی فرقے نے نہیں دیے۔ خواتین کی ایک تنظیم ہے جو لجنہ معاولہ کے نام سے 1922 میں قائم کی گئی۔ اس تنظیم کے قیام کی بھی الگ داستان ہے کہ کس طرح زبردستی جماعت کی تنظیموں کی بنیاد رکھی گئی۔ جو بھی اس تنظیم میں شامل نہیں ہونا چاہتا تھا اس کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا گیا۔ ماں کو بیٹے سے، بیٹے کو ماں سے، باپ کو بیٹے سے اور بیٹے کو باپ سے جدا کر دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ یوں لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور تنظیم میں نام رکھوانے لگے، یعنی اس میں دل، دماغ اور انسان کا تو کوئی سوال ہی نہیں رکھا گیا۔ جی، ابھی دیکھیں کہ کس طرح سے یہ تنظیمیں قائم کی گئیں اور کس طرح سے زبردستی لوگوں کو ان تنظیموں میں شامل کیا گیا اور پھر ان کو عقیدت کے نام پہ آگے بڑھایا گیا۔ تو یہ تنظیم کی تاریخ تھی جو کہ میں یہاں تاریخ ہے تنظیم کی جو کہ میں آپ کو سنا رہی ہوں۔ آگے بھی میں ابھی پڑھتی ہوں۔ اگر ہم پاکستان اور افغانستان کا جائزہ لیں تو ہمیں بہت سی رسومات نظر آتی ہیں، جیسے ستی، ونی، وٹا سٹا، قرآن سے شادی، چھوٹی عمر میں شادی، جہیز کی رسم وغیرہ۔ بظاہر جماعت احمدیہ میں یہ رسومات نظر نہیں آتی، مگر دیکھا جائے تو ایک احمدی خاتون بھی اس قسم کی ملتی جلتی رسومات میں جکڑی ہوئی ہے، جیسا کہ تیسرے خلیفہ کی بیگم طاہرہ صدیقہ ناصر جن کی محض 24 سال کی عمر میں شادی ہوئی اور خلیفہ صاحب 74 سال کے تھے۔ یہ شادی مشکل سے 2 ماہ چلی، اس کے بعد خلیفہ صاحب انتقال فرما گئے۔ بے وکی کی طویل عمر 1982 سے انہوں نے بغیر شادی کیے گزار دی۔ اب دیکھیں یہ کس قدر بڑا ظلم ہے کہ نہ تو وہ نبی تھے اور خلیفہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ وہ کس طرح کے خلیفہ تھے، اور ان کی بیوی جو کہ 47 ڈیز کی شادی ان کی رہی اور اس کے بعد ان کے ہسبینڈ انتقال کر گئے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور بالکل جوان لڑکی تھی وہ۔ تو مطلب کہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ عورتوں کے اوپر کس طرح کے یہ ظلم کرتے ہیں۔ یہ ظلم کی ایک بہت بڑی مثال ہے یہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ آپ نے بالکل ٹھیک لکھا ہے، ایک تنظیم تو ہے لجنہ معاولہ کے نام سے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ تنظیم جو ہے یہ کسی طرح سے بھی خواتین کو کانفیڈنس نہیں دیتی، ان کو جرأت نہیں دیتی، کیونکہ انسان کی جو تجدید تعلیم و تربیت ہو رہی ہوتی ہے اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اس کے ذہن کو اور اس کی سوچ کو غلام بنایا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو اس انسان کو کانفیڈنس دیا جائے، ہر جگہ اپنی بات کرنے کا حوصلہ دیا جائے اور سوال اٹھانے کا حوصلہ دیا جائے، اور کہیں اگر اس کی حق تلفی ہو رہی ہے تو اس پر بھی آواز اٹھانے کا حوصلہ دیا جائے۔ لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، تقریری مقابلے ہوتے ہیں، یا عورتوں کے لیے ایک طرح سے ایک آؤٹ لیٹ بنا دیا ہے کہ بھئی آپ کو کوئی کپڑے وپڑے پہننے کا شوق ہے، دکھانے کا، تو یہ آپ کے لیے ایک محفلیں منعقد ہوتی رہتی ہیں وقتاً فوقتاً، اس میں آپ یہ شوق پورے کریں۔ کبھی مینا بازار ہے، کبھی سپورٹس ہے، کبھی نمائش ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کر کے مختلف چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو باقی یہ کہ جو ان تقاریر وغیرہ کے موضوعات بھی دیے جاتے ہیں اس کے اوپر جو تقاریر ہے وہ رٹی ہوئی تقاریر کرنے کا رواج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ موضوع دیا جائے اور اس کے اوپر بولیں۔ فی البدیہہ تقریری مقابلے بھی بعض اوقات ہوتے ہیں، لیکن جنرلی جو تقریریں ہوتی ہیں وہ رٹے ہوئے لکھے ہوئے موضوعات جو پہلے سے دیے جاتے ہیں اس کے اوپر ہوتی ہیں۔ اب جو بندہ رٹ کے اس کو بول رہا ہے اس کو رٹے کی وجہ سے تو کوئی اچھے نمبر مل سکتے ہیں، لیکن ادروائز اگر اس کے سامنے فوری طور پہ کہیں کوئی سوال اٹھایا جائے یا کچھ ہو تو اس میں وہ جواب نہیں دے سکتا۔ تو میں چونکہ خود بہت عرصے تک سیکٹری اصلاح و ارشاد رہی ہوں مرکزی، تو مجھے اندازہ ہے کہ ایک بھی عورت ایسی نہیں ملتی تھی کہ جس کو اگر کبھی ضرورت پڑ جائے کسی غیر جماعت سے بات کرنے کی تو وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے دلائل دینے کے لیے تیار ہو سکے۔ تو حالانکہ تقریری مقابلوں میں اتنی لڑکیاں ہوتی تھیں کہ باری نہیں آتی تھی، تو یہ ساری چیزیں بھی ہیں۔ تو کانفیڈنس نہیں دیا جاتا نا، ہمت نہیں ہوتی کہ کسی سے بات، کوئی باہر کسی سے بات کر سکے۔ ایک دفعہ ایک اہل تشیع خاتون تھی، وہ کوئی جرنلسٹ وغیرہ بھی تھی، اور وہ کوئی انٹرویو کرنا چاہتی تھی۔ اسے اندازہ نہیں تھا بہت زیادہ کہ احمدیز کی تنظیم کس طرح سے ہے اور کس طرح سے یہ سلسلہ کام کرتا ہے، اور آئندہ ان کے کیا ڈریمز ہیں اور ان کے اہداف کیا ہیں اور کیا یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے اس کے کچھ سوال تھے۔ تو مجھے یاد ہے کہ پورے اسلام آباد میں ان کو ڈھونڈے سے ایک عورت بھی ایسی نہیں ملتی تھی کہ جس کو یہ اس کے ساتھ بات کروا سکیں۔ پھر فائنلی ایک تو خاتون تھی، وہ میرا خیال ہے کوئی سیکٹری تعلیم تھی، اور وہ اچھی ایجوکیٹڈ خاتون تھیں اور کسی کالج میں پڑھاتی بھی تھی۔ تو ایک ان کو اور ایک مجھے منتخب کیا گیا، اور پھر ہماری ان کے ساتھ، ان خاتون کے ساتھ کافی لمبی بات چیت ہوئی، اور شی واز ویری سیٹسفائیڈ، اور بہت اچھے طریقے سے وہ تو ظاہر ہے جرنلسٹ تھی، میں بھی جرنلسٹ تھی، اور وہ خاتون بھی ہائیلی ایجوکیٹڈ تھیں، اور کالج میں لیکچرز وغیرہ دینے کی وجہ سے اس کے اندر کانفیڈنس تھا، تو بہت اچھے طریقے سے وہ نشست ہو گئی۔ لیکن تب مجھے لگا کہ وہ جو قحط الرجال کہتے ہیں نا مردوں کے لیے، قحط النساء اتنا شدید تھا کہ پورے اتنے بڑے اسلام آباد میں ہم 2 عورتیں ان کو اویلیبل ہوئیں۔
हैं हमारे माशरे में घरेलू मुलाजमीन ख्वाह मर्द हो या औरतें इल्ला माशाल्लाह जो सलूक इनसे रवा रखा जाता है वो सब ही के सामने है। ऐसे ऐसे दर्दनाक वाक़यात हैं कि रूह कांप उठती है। बावजूद इसके कि इस्लाम में मुलाजमीन के भी हुकूक हैं, इनका भी ख्याल रखने की इनका कहा गया है, मगर इसके बावजूद इक्का दुक्का ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात की वीडियो सामने आ जाती हैं कि ऐसे जालिमों को इंसान कहना भी इंसानियत की तौहीन है। आगे लिखती हैं, ऐसे ही बहुत से वाक़यात मिर्ज़ा शाही ख़ानदान की ही बीवियों के सुनने को भी मिलते हैं। वो ख़वातीन जो स्टेज पर जलसे इजलासों पर इख़लाक़ियात का भाषण देती नज़र आती हैं, इनके अपने घर के हालात बहुत से काम करने वालियाँ बता चुकी हैं। ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि देखें इंसाफ की बात करनी चाहिए। ऐसे वाक़यात तो पाकिस्तान में आम नज़र आती हैं कि घरेलू मुलाज़माएँ या ख़ास तौर पे छोटी उम्र की जो बच्चियाँ वग़ैरह मुलाज़में रखी होती हैं, उनके साथ बहुत ज़ुल्म और ज़्यादती के वाक़यात होते हैं। लेकिन चलो हम ये कह सकते हैं कि भई उन लोगों ने तो कोई वो तो कोई इलाही जमात नहीं है। वो तो बेचारे जो हैं उन्हें तो पता नहीं है। लेकिन जो लोग रोज़ इख़लाक़ियात पर लेक्चर सुनते हैं, हफ्ते में 2-2 इजलास अटेंड करते हैं, वहाँ भी कुरान हदीस के हिसाब से ये सारे लेक्चर सुनते हैं और ख़ुद भी जो ख़ानदान की ख़वातीन हैं वो ऐसे मौज़ूआत पे लेक्चर्स देती हैं, तो फिर इस तरह की बात जो है ना उन घरों में होना जो दुनिया को समझते हैं कि हम दुनिया भर को इखलाक सिखाने के लिए आए हैं, उन घरों में ऐसे वाक़यात का होना जो है वो अफ़सोसनाक होता है। वरना ये ठीक है कि ज़ुल्म और ज़्यादती तो दुनिया में हर जगह है और बहुत लोगों के हम देखते हैं टीवी पे आ रहा होता है कई दफ़ा कि किसी घराने में बेचारी नौउम्र मुलाज़मा के साथ क्या ज़ुल्म और ज़्यादती की गई, उसको इस्त्री से जलाया गया, उसको खाना नहीं दिया जाता, उसको रात को बाथरूम में सोने को कहा जाता, वगैरह-वगैरह। इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो हम देखते हैं। लेकिन एक इलाही जमात के लोगों के घरों में जब ऐसे वाक़यात हों तो फिर वो उस पर बहुत दिल उठता है। के जलता कोयला हाथ पर रखना, स्त्री से पीठ दाग देना, लड़ाई कुटाई तो जैसे मामूल है, झिड़कियां, डांट टपट और सबसे बढ़कर इंसानियत सोच सलूक जो रवा रखा जाता है, इनमें मिर्जा खानदान के नौजवान लड़कों का घरेलू मुलाजमीन की इज्जत को तार तार करना है। ये मुलाजमीन ख्वाह छोटी उम्र की बच्चियां हों या नौजवान, किसी किस्म की तफरीक मद्देनजर नहीं रखी जाती। इन बच्चियों के वालिदैन मजबूरी के तहत इन बीबियों के घर इनको छोड़ जाते हैं जहां इनसे यूं इंसानियत सोच सलूक होता है। मिर्जा खानदान के खुदाम और इंसारों से इनकी अपनी घर की औरतों की इज्जत महफूज नहीं, तो इन बंद किलों में रहने वाली घरेलू मुलाजमीन बेचारियों की क्या हैसियत होती है, बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है। मिर्जा शाही मुगलिया खानदान का तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। जी अर्शी, बिल्कुल। जब इनसे ये बात की जाती है कि आपकी जमात में ऐसे होता है, तो वो ये कहते हैं कि वहाँ पे भी तो होता है, ये देखें जाके फलां जगह पे ऐसे हुआ, फलां जगह पे ऐसे हुआ, आप वहाँ क्यों नहीं बोलते? वहाँ क्यों नहीं बोलते? हम आपके ऊपर बोलेंगे क्योंकि हम आपसे निकले हैं, और वहाँ बोलने वाले बहुत हैं जो कि ऐसे सलूक देखते हैं या इस तरह के का कोई भी वाक़या देखते हैं तो सड़क पे लाके पटाई करते हैं और उनकी ऐसी धुलाई करते हैं कि दुनिया जाने, और वो जानता है कि जिसकी धुलाई की होती है और अल्लाह जानता है। और एक अफ़सोसनाक बात ये भी है कि वो जो क्या कहते हैं इस्लाम में जो मसावात का दर्स है वो तो कहीं दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देता। हालांकि ज़माना इस्लाम में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो तुम खाओ वही अपने ग़ुलाम को खिलाओ, जो तुम पहनो वही तुम अपने ग़ुलाम को पहनाओ। तो लोग इतने ज़्यादा इस तालीम से मुतासिर हुए और इतना ज़्यादा उनके अंदर खौफ खुदा था कि वो एक ही थान से कपड़ा ख़रीदते, उसी से ग़ुलाम का लिबास बनवाते और उसी तरह का अपना बनवाते। हत्ता कि आम देखने वाले को ग़ुलाम और आका में तमीज़ मुश्किल हो जाती थी कि इनमें से ग़ुलाम कौन है और आका कौन है, एक जैसा लिबास। इसी तरह वो खाने के मामले में भी वही कुछ रवा रखते थे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। लेकिन यहाँ तो गरीब और अमीर के दरमियान इतनी ज़्यादा फ़र्क है कि बंदा हैरान रह जाता है कि ये जो गरीब हैं बेचारे, स्पेशली इनके घरों में काम करने वाले, ये गरीब इंसान भी हैं या नहीं हैं, जितना इनके साथ ज़ालिमाना सलूक होता है। मैं ये नहीं कहती कि सभी ऐसा करते होंगे, लेकिन बात यह है कि चंद भी ऐसा करें और उनकी स्टोरियाँ मंजर आम पे आ जाएं तो फिर पूरी कम्युनिटी बदनाम हो जाती है ना। अब देखें ना, ये जो वाक़यात आ रहे हैं बच्चों के साथ ज़्यादतियों के और इस तरह के जो सेक्स अब्यूज़ के वाक़यात हैं, तो उसकी वजह से 2-4 वाक़यात भी सामने आए तो पूरी कम्युनिटी के लिए तकलीफ दे सूरत हाल पैदा हो जाती है ना। क्योंकि जब सफ़ेद चादर के ऊपर एक धब्बा भी हो तो हर एक की नज़र उस धब्बे की तरफ जाती है, बाकी सफ़ेद चादर किसी को नज़र नहीं आती। तो यहाँ जहाँ कई धब्बे हों तो वहाँ ज़ाहिर है कि फिर उसको एक गंदी चादर ही कहा जा सकता है ना। तो ये बात है, जो इलाही जमात होने के दावेदार हों उन्हें तो फिर या तो बंदा दावा ना करे, सीधी सी बात है, कहे जैसे बाकी मुसलमान हैं, बाकी लोग हैं दुनिया के, वैसे ही हम भी हैं, हमें कौन से सुरखाब के पर लगे हैं। लेकिन जब एक तकवा का लिबादा ओढ़ा जाता है और कहा जाता है हम दूसरों से बेहतर हैं, हम इस दुनिया की इस्लाह और तरबियत के लिए आए हैं, तो फिर कुछ तो फ़र्क होना चाहिए ना। लिखती हैं, डॉक्टर मिर्जा सुल्तान मुबशर की वालदा जब बीमार थी तो इनकी देखभाल करने वाली एक मुलाजमा ने अफसोस और दुख से बताया कि जब मैं इनके कमरे में जाती थी तो सबसे पहले अच्छी तरह हाथ साफ करवाए जाते थे, कई तरह के स्प्रे किए जाते
फिर जाकर कहीं मुझे कमरे में जाने की इजाजत मिलती। इस पर भी ये कि कमरे में भी दूनी दी जाती। इस इम्तियाजी सलूक को देखकर मुझे सख्त गुस्सा आता। फिर इसी दौरान एक दफा लाइट चली गई तो मिर्जा सुल्तान मुबशर वापडा वालों को फोन करके गालियां दी। मिर्जा सुल्तान मुबशर ने वापडा वालों को फोन करके गालियां दी और फौरी बिजली की बहाली करने का कहा। इसका कहना था कि 5 मिनट के अंदर लाइट आ गई और मैं हैरान रह गई। घर आई तो मेरे बच्चे गर्मी से बेहाल हो रहे थे। मैंने जी भरकर इस खानदान को बुरा भला कहा और बददुआएं दी। डॉक्टर सुल्तान मुबशर वही है जिसका जिक्र निदा ने अपनी ऑडियो में मिर्जा मसरूर से किया कि इसने भी कंजरखाना रब्बे में खोल रखा है। जी ज़ाहिदा, बहुत दफ़ा हम ऐसी वीडियोज़ देखते हैं जिसमें किसी दाढ़ी वाले या मौलाना को या किसी को ऐसे रंगे हाथों अगर अवाम ने पकड़ लिया है तो औरतों तक ने जूतियों के साथ उसकी मरम्मत की है। तो और फिर इसके अलावा उसको सड़कों पे लाके घसीटा जाता है, मुँह काला किया जाता है, लोग कपड़े फाड़ देते हैं, गधे पे सवार करते हैं, बड़ा कुछ लोग भी करते हैं, उसके खिलाफ फिर मुकदमात भी ज़ाहिर करते होंगे। लेकिन यहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं होता ना, यानी गुज़श्ता 100 साल से भी ज़्यादा हो गए, इसमें ऐसे लगता है कि कभी कोई जिनसी बेराहरवी का कभी केस ही ना हुआ हो, इस कदर पाकीज़ा सूरत हाल रही हो। तो यहाँ ये इस बात का अफ़सोस होता है कि यहाँ सब कुछ ब्रश अंडर द कारपेट, बस कर दो, उसके ऊपर कोई ना बोले, खामोश हो जाओ। ये जो है, ये चीज़ तकलीफ़देह है। अब शुक्र है कि आहिस्ता-आहिस्ता लोग बोलना शुरू हुए हैं, आवाज़ें उठनी शुरू हुई हैं। तो पहले भी मुख्तलिफ़ ज़्यादतियों की तो बातों पे आवाज़ें उठती थी, लेकिन इस दफ़ा चूँकि सोशल मीडिया का दौर है, तो जिस तरह खुल के ये आवाज़ें सामने आई हैं, तो उससे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बेहतरी आएगी। जी, बिल्कुल इसी तरह है। जैसे ये पहले कहते होते थे, हम हमेशा ये सुनते थे कि किसी अहमदी ने कभी कोई शीशा तक नहीं तोड़ा। आप कोई वो मिसाल तो दिखाएँ कि किसी अहमदी ने कोई ऐसी हरकत की हो। वो ये था कि सोशल मीडिया नहीं था और सब चीज़ें इनकी छुपी हुई थी। अब जबकि सोशल मीडिया है, सब कुछ नज़र आ रहा है, सब कुछ वाज़ेह तौर पे दिखाई दे रहा है, तो अभी ये छुपा के दिखाएँ, अभी ये नहीं छुप सकते और अभी ये सामने आएँगे और भी आएँगे। अभी एकदम से ये खुला है सारा सिस्टम इनका और अभी खुलता ही जा रहा है। लिखती हैं, मिर्जा मसरूर की बेगम साहिबा लजना में आपा जान बीबी सबूही के नाम से याद की जाती हैं। औरतों के इंसानी हकूक के हवाले से कभी किसी लजना ने इनकी आवाज़ एमटीए पर नहीं सुनी। कभी इन्हें खवातीन के हकूक, इनकी मुश्किलात को हल करने के हवाले से सरगर्म नहीं देखा। वैसे तो खवातीन के हवाले से जमात अहमदिया में जिस किस्म का घिनौना रवैया नजर आता है, इसे सब ही जानते हैं। मसलन खवातीन को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए इस्लाही कमेटी या कज़ा के अदारे में कोई खातून वकील नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जो लोग आवाज़ उठा रहे हैं, अपने पर्सनल वाक़यात बयान कर रहे हैं, अगर वो गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं, तो आप उनके खिलाफ केस करें। आप उनके खिलाफ सामने आके ये कहते जाना, ये चंद पेड लोग यहाँ पे ग्रुपों में छोड़े हुए हैं जिनका ये है कि हर बात को कह दिया झूठ है, झूठ है, झूठ है, गलत है। किसी बात का दलील से जवाब ना दिया, किसी बात का उल्टा दूसरे के ऊपर फ़ौरन ज़ातियात पे उतर आए और रखी हमलों पे ताकि ये डर के भाग जाए। तो ये तरीक़ेकार है, ये तो कोई तरीका नहीं होता ना। अगर झूठ है, गलत है तो साबित करके दिखाओ ना। इतने लोगों ने जिन्होंने जमात को छोड़ा, उन्होंने बाद में आके ऐसे-ऐसे बयान दिए। वो कोई मुरब्बी आमिर मुनीर साहब हैं, उन्होंने कुरान हाथ में लेके जो राज़ हाय दरूम आश्कारा किए, उनको सुन के इंसान कानों को हाथ लगाता है। तो लेकिन जिन नाम ले लेके उन्होंने बात की, तो उनमें से किसी ने उनके ऊपर केस नहीं किया, हालाँकि वो वहीं रहते हैं। इसका मतलब है कि हिम्मत नहीं है ना, ज़ाहिर है। अगर सच्चा हो और उस पे इल्ज़ाम लगे इस तरह का, तो वो तो कहता है इल्ज़ाम लगाने वाले को मैं उसके घर तक पहुँचा के आऊँ। हाउ डेयर! इसने मेरे पर इल्ज़ाम लगाया कैसे? कम से कम कुछ तो बोलता है, लेकिन सब के सब गुमसुम होके बैठे रहे, तो कोई भी कुछ नहीं बोला। इससे मैंने तो खलीफा साहब को टीवी पे बातें करते हुए, लजना के साथ बात करते हुए ये सुना है कि वो लजना से कह रहे होते हैं कि आप ये वाला शोबा नहीं ले सकती, ये वाला नहीं ले सकती, ये इख्तियार करें शोबा या ये इख्तियार करें। तो खलीफा साहब को क्या इख्तियार है कि वो लड़कियों को बताएं कि वो कौन सा शोबा लें? जी बिल्कुल, ये इन्होंने रट लगाई होती है कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं। चलिए, जहाँ तक खलीफा साहब की बेगम साहिबा का ताल्लुक है, हो सकता है वो बिल्कुल घरेलू औरत हो सकता है उन्हें पब्लिक में बोलना ना आता हो सकता है उनको इन सारी कामों की आदत ना हो। लेकिन बाकी जो ओहदेदारान हैं, जो सदर लजना वगैरह होती हैं और ज़िला की सदरें होती हैं और बाकी जो पूरी नेशनल सदरें होती हैं और आमला होती है वगैरह-वगैरह, उनको तो कम से कम ऐसे किसी मसले में आवाज़ उठानी चाहिए। मैं पाकिस्तान में भी देखती थी, बाज़ औक़ात किसी गरीब घराने में कोई मसाइल पैदा हो जाते थे या कुछ भी हो जाता था, तो कोई आमला उसका नोटिस तक नहीं लेती थी। किसी के घर में गुर्बत है, किसी के मुआशी बदहाली है, अगर कोई कह भी देता था कोई साहिब हैसियत कि जी मैं इनकी पर्सनली मदद कर दिया करूँ, तो मना किया जाता था कि नहीं, आप पर्सनली मदद किसी की नहीं कर सकते, आप जमात के थ्रू मदद करें, वरना पर्सनली मदद करना मतलब मना है। और फिर ये लोग फिर पीछे ही पड़ जाते हैं और फिर आपको बड़ी मुश्किल पेश आएगी। और जमात का जब एक सिस्टम बनाया गया है तो आपको पर्सनली मदद करने की क्या ज़रूरत है? जबकि वो औरतें बताती थी कि हमें जमात से अगर कोई मदद माली चाहिए होती है तो एप्लीकेशन देनी पड़ती है, फिर वो एप्लीकेशन पता नहीं किस-किस से अटेस्ट करानी पड़ती है, इससे पहले अपने हल्के की सदर को दिखाओ, उससे अटेस्ट कराओ, फिर उधर इधर-उधर पता नहीं कहाँ-कहाँ से। तो वो किसी इंसान की गुर्बत और बेबसी का जो दास्तान है वो पूरे में घूम जाती है। तो ये बहुत एक अफ़सोसनाक बात, तब कहीं जाके उसको थोड़ी बहुत मदद मिल जाए, तो क्या उस बेचारे का बनना है उसमें। मिर्जा मसरूर साहब ने खवातीन के वकील बनने पर पाबंदी लगा रखी है। मोहल्ले की सतह पर होने वाले फैसलों में सदर लजना का किरदार ना होने के बराबर है। खवातीन की काउंसलिंग का कोई तरीका राइज नहीं।
घरेलू सतह पर होने वाली नाइंसाफियां अरूज पर है। खवातीन नफसियाती अवारस का शिकार हैं। खातून अव्वल समेत दिगर खवातीन का रवैया आम अहमदी लजना से हद तक अमेज है। आम अहमदी औरत के लिए मिर्जा खानदान एक मुकद्दस खानदान है। औरतें झुककर सलाम करती हैं, जमीन पर बैठती हैं, इनका जूठा खाना, कपड़ा लिबास तबर्रुक ख्याल करती हैं, यहाँ तक कि जूता उठाना भी अजाज समझती हैं। बहुत दफा देखा कि एक दूसरी साबका खातून ने अव्वल आपा ताहिरा सिद्दीका नासिर, जो जवानी में बेवा हो गई और तमाम उम्र शादी ना की, इनका मस्जिद में आना और फिर इनके जाय नमाज उठाना भी एक तबर्रुक और अजाज तस्वर किया जाता है। दूसरी तरफ यही अकीदतमंद खवातीन जब जी, जब एक तो दूसरी तरफ यही अकीदतमंद खवातीन जब अपने मसाइल लेकर जाएं तो दुत्कार दी जाती हैं। ऐसी अकीदतमंद ब्रेन वाश शख्सियत प्रस्त लजना जूते खाना भी अपने लिए अजाज समझती हैं। जी, नफ्सियाती अवारिस का तो मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि मैंने लेडीज़ के ग्रुप चलाए हैं जमात अहमदिया की लेडीज़ के, और हमारे ग्रुप में 180-90 के करीब औरतें मौजूद होती थीं। लेकिन आप यकीन करें कि वो उनमें से अक्सरियत जो थी, उनके इतने ज़्यादा घरेलू मसाइल थे और नफ्सियाती मसाइल थे, वहाँ पे तो वो नहीं बताती थी। लेकिन चूँकि मेरे साथ हर किसी की दोस्ती थी और वो मुझसे खुल के मेरी पर्सनल विंडो पे आके बयान कर लेती थी, तो मेरा मतलब है 2-2 घंटे भी वो अपना दुःख बयान करते और अपनी परेशानियाँ नहीं थकती थी। मेरा सर खाया जाता था बिल्कुल, मैं बिल्कुल थक जाती थी, एग्ज़ॉस्ट हो जाती थी, और अगर उन्हें उसका कोई हल बताती थी, तो उसकी तरफ वो तवज्जो नहीं करती थी। बस उनका दिल चाहता था कि वो अपना दुखड़ा जो है वो बयान करती रहें, हर रोज़, हर दूसरे-तीसरे दिन, और इस तरह से करके तो मैं उकता जाती थी। लेकिन ये है कि बहुत मसले थे, ऐसे-ऐसे अजीब मसले थे कि जो मैंने कभी भी ज़िंदगी में इतनी मैं हमेशा फ्रैंक रही हूँ, और मेरी इस वजह से बहुत दोस्तें रही हैं। कॉलेज की सतह पे, यूनिवर्सिटी की सतह पे, जॉब की सतह पे बहुत ज़्यादा लोग मुझसे जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं। तो मैंने कभी भी कहीं लोगों में उस तरह की घुटन और जज़्बाती मसाइल नहीं देखे। ऊपर से अकीदत की जो पट्टी बंधी हुई है आँखों पे, उसने और ज़्यादा मसाइल पैदा कर दिए हैं। तो खुल के वो कहीं और बात नहीं कर सकती हैं। हर कोई किसी दूसरे का कोई करीबी रिश्तेदार निकल आता है, तो मेरा उन्हें पता था कि हम जो भी बात करेंगे ये अपने तक रखेगी, और ऑफ कोर्स मैंने हमेशा अपने तक रखी और उनको बहुत टाइम दिया। लेकिन ये मुझे खुला कि ये बेचारी इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड, गमज़दा, मनफ़ी ज़हन है इनमें से अक्सरियत का। तो बाकी कुछ ओहदेदारान वगैरह थी, उनमें वैसे ही तकब्बुर बड़ा था। तो बहरहाल हर तरह की ख़वातीन को करीब से देखने का मौका मिला। शायद उतना इंसान इजलासों में जाके दूसरों के बारे में नहीं जान सकता जितना ग्रुपों में जान लेता है। क्योंकि ग्रुपों में लोग अपनी सोच शेयर करते हैं, और इजलासों में लोग एक मुत्तकी और नेक परहेज़गार इंसान बन के आते हैं। तो वहाँ पे तो मेरा मतलब है जो प्रोग्राम होता है इजलास का वही होता है ना, आपस में तो बातचीत, चलो थोड़ी देर चाय पे किसी ने एक-दूसरे का हाल-चाल पूछ लिया, बच्चों का हाल-चाल पूछ लिया, लेकिन ग्रुपों में जिस तरह इंसानी शख्सियत नुमायाँ होती है, वो और कहीं भी नहीं होती। मामले में जमात अहमदिया का वही रवैया है जो सिंध के जालिम वडेरों और उनकी बेगमात का, या जालिम जमींदारों और उनकी बेगमात का है। किसी किस्म का फर्क नजर नहीं आता। इस सिलसिले में बहुत सी खवातीन ने वाकयात सुनाए हैं। एक खातून का कहना है कि दफ्तर लजना रब्वा में काम करने वाली खवातीन में आजिजी इनकसारी के बजाय नखुवत नजर आती है। अव्वल तो ये इनसे बात करना पसंद नहीं करती, किसी काम के सिलसिले में जाओ तो घंटों बैठा कर रखती हैं, और जब अपने मसाइल बताए जाएं तो लापरवाही से सुनकर नजरअंदाज कर देती हैं, या फिर मर्दों के पास भेज दी जाती हैं कि इसके लिए फलां दफ्तर में दरख्वास्त दो। इस सिलसिले में मिर्जा मसरूर की बहन अब्दुल कुद्दूस का रवैया काबिल मजम्मत है। जैसा कि एक खातून ने इनसे मुलाकात का अहवाल सुनाया कि किस तरह इनसे जब मसाइल का जिक्र किया तो लापरवाही से नजरअंदाज करती हुई चाय और दिगर लवाजमात खाने चली गई। मुझे तो इसकी वजह ये समझ आती है कि ज़ाहिर है जो ख़वातीन ख़ानदान में पैदा हुई या रब्वा में ही पैदा हुई, वहीं पे पढ़ा लिखा, फिर वहीं कोई ओहदेदार बन गई, किसी दफ्तर में जा बैठी। बाहर की दुनिया की उनको हवा भी नहीं लगी, जहाँ लोग एक दूसरे से इक्वालिटी की सतह पे मिलते हैं, या ठीक है भई एक इंसानियत की सतह पे तो कम से कम मिलते हैं। यहाँ तो फिर जिसको एक अपर क्लास में कोई पैदा हो गया, तो उसने तो दूसरे लोगों को अपनी रियाया ही समझ लिया। तो और कोई एक्सपोज़र भी नहीं है, वरना बाहर निकले बंदा और किसी के साथ तल्ख़ कलामी करे या बुरे तरीके से बात करे, और वो आगे से ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो खुद ही तमीज़ आ जाती है कि किस तरह बात करनी है। लेकिन जिन लोगों को पता है कि अगलों ने कुछ बोलना ही नहीं है, सिर्फ हाँ जी करना है, यस सर करना है, तो वहाँ तो फिर इंसान तकब्बुर में बढ़ता चला जाता है ना, वहाँ उसको अंदाज़ा नहीं होता। आम दुनिया में आप देखें, जब आपको आप किसी के साथ अच्छा सलूक करेंगे, वो भी आपके साथ अच्छा करेगा, आप उसकी इज़्ज़त करेंगे, वो भी आपकी इज़्ज़त करेगा, आप उसको आपसे काम पड़ेगा, आप कर देंगे, वो भी आपका काम कर देगा, तो एक म्यूचुअल सतह पे ज़िंदगी चलती है। जबकि यहाँ पे जो लोग पैदा होते हैं, फिर यहीं बड़े होते हैं, ख़ास तौर पे औरतें, तो फिर यहीं के स्कूलों कॉलेजों से पढ़ती हैं, फिर यहीं पे ओहदेदार लग जाती हैं किसी दफ्तर में, उनको नहीं पता बाहर की दुनिया क्या है। तो वो बस यहाँ पे ही अपने आप को 30 मार खान समझती रहती हैं। बाहर कहीं निकले तो पता चले कि किस तरह से है ना। तो ख़ानदान की औरतों का मामला इससे भी ज़्यादा वो है इस मामले में कि वो तो समझती हैं कि हमें कोई ख़ास किस्म की सुपीरियॉरिटी हासिल है, और इन लोगों का काम है कि हमारे आगे सर झुका के और नज़र झुका के हमारे सामने रहें और हमारी हर बात के ऊपर यस सर करें। जी, बिल्कुल यही हाल मर्दों का भी है, क्योंकि हमारे एक मुरब्बी साहब थे, वो इस्लामाबाद में भी कुछ अर्सा रहे, उसके बाद वो रब्बा चले गए थे, उनकी वहाँ पोस्टिंग हो गई थी। तो एक दफ़ा बात हुई तो मैंने कहा अब तो आप बड़े खुश होंगे, कहने लगे स्वात मिट्टी खुश होना है, यहाँ तो हर एक ही 9 गज़ का है। तो ऐसे-ऐसे अनापरस्त लोग हैं कि उनके साथ तो डील करना, काम करना ही बड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे आज तक उनके ये लफ्ज़ याद हैं कि उन्होंने कहा स्वात मिट्टी खुश होना है, यहाँ पर तो हर एक 9 गज़ का है। जी अर्शी,
आपकी इस बात से मुझे याद आया कि जब मैं यहाँ पे इजलासों में जाती थी तो मुझे ये महसूस होता था कि मैं मुंह बंद करके आई हूँ और ऐसे ही मुंह बंद करके वापस चली जाऊँगी। कोई इखलाकी बात नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई किसी से हंस के बात भी नहीं करता। हालांकि इसके बरक्स जब हम यहाँ पे दूसरी महफिलों में जाते हैं, मिसाल के तौर पे जब मैं अपने बच्चों के स्कूलों में जाती थी तो मुझे हज़ार लोग होते थे जो बात करने वाले होते थे, बड़े इखलाक के साथ और बड़ी अच्छी सोच के साथ और अच्छी अच्छी बात करते थे। लेकिन ये अपने लोग थे, अपने मज़हब के लोग थे और अपने मुल्क के लोग थे, और ये बात करना तो दरकिनार, ये तो इस तरीके से अपने एक्शन दिखा रहे होते थे कि जैसे अल्लाह की पनाह। लिखती हैं, खवातीन के रिसाले मिसबाह के हवाले से बहुत सी खवातीन ने शिकायत की कि मिसबाह को बंद हुए अरसा हो गया मगर हमसे मिसबाह के लिए चंदे लिए जा रहे हैं। बहाना यह बनाया जाता है कि अमले को तनख्वाह देनी है, इसलिए पूरे पाकिस्तान से मिसबाह के लिए चंदे लेने का हुक्म है। इस सिलसिले में मजीद तहकीक की गई तो इल्म हुआ कि दफ्तर मिसबाह में 2 खवातीन काम करती हैं जो हर माह मिसबाह तरतीब देती हैं। मिसबाह रसाला की तरसील के लिए ना कागज के अखराजात हैं, ना डाक खर्च, बल्कि किसी भी किस्म का कोई खर्चा इस सिलसिले में नहीं हुआ। प्रेस भी मुकम्मल बंद है, इसके बावजूद मिसबाह के नाम पर चंदा लिया जा रहा है। इस तरह जलसे और इज्तिमा के नाम पर भी चंदे बटोरे जा रहे हैं, जबकि इन पर भी पाबंदी है। आखिर इतना पैसा कहाँ जाता है? किसी भी सवाल फिर इतना पैसा कहाँ जाता है? किसी में भी सवाल करने की जरूरत नहीं। अफराद जमात को मजबूर किया जाता है कि ये सब चंदे लाजमी दिए जाए। जी, मिसबा रिसाला जब निकला था तो तब शुरू-शुरू में इसका मयार बड़ा हाई था, और उस ज़माने में जो मेरा मतलब है कि हिंदू जो लोग एक तरफ निस्बतन पढ़ी-लिखी कौम थी, और वो लोग भी कहते थे कि जी ये अहमदियों का जो रिसाला है, इनकी तो ख़वातीन भी इतनी वो हैं, इतना आला रिसाला निकालती हैं। लेकिन रफ्ता-रफ्ता हर चीज़ जो थी वो उसका मयार गिरता गया, वो ज़वाल पज़ीर होती चली गई। और अब तो मेरा मतलब है जो मिसबा रिसाला निकलता था कभी, तो उसमें तो बिल्कुल मेरा मतलब कोई काम का मज़मून भी नहीं होता था। और सबसे उसमें एक खराबी ये थी कि किसी भी मज़मून पे अब जो लोग राइटर होते हैं, ज़ाहिर है अगर वो कोई तहरीर लिखते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके नाम से शाया हो, लेकिन उनके नाम छपने पे पाबंदी, उनको नाम ही नहीं दिया जाता। हत्ता कि खाने-पीने की तरकीब भी अगर किसी ने कोई रेसिपी भेज दी है, भई उस बेचारे का तो नाम दे दो, उसने पोस्ट की है, उसने लिखी है, उसने टाइप की है, या उसने हाथ से कागज़ कलम पे लिखी है, अपना नाम लिखा है, उसने कोई ख़ास ये रेसिपी भेजी है, किसी ने कोई और कोई ऐसी चीज़ लिख दी है, कोई कहीं का सैर का अहवाल लिखा है, उस पे लिख दो, तो नाम लिख दो उसका। लिखने की ख्वाहिश तो लोगों में बाकी रहे ना। जब आप किसी भी चीज़ के ऊपर उस शख्स का, लिखने वाले का नाम नहीं देते, एक औरत घर में आलू गोभी पकाती है, तो वो भी चाहती है कि मेहमानों के सामने जब रखा जाए तो कहें कि ये, पूछते हैं जी ये किसने पकाई है? बहुत अच्छी है। तो वो कोई कहता है जी ये इसने पकाई है, तो ये शामी कबाब किसने बनाए हैं? ये बड़ी बेटी ने बनाए हैं। ये रायता, ये हलवा किसने बनाया है? ये बहू ने बनाया है। तो इंसान की नेचर ऐसी है कि इंसान ये बात पसंद करता है कि उसकी कोई भी जो क्रिएशन हो, उसकी कोई क्रिएटिव काम उसका जो भी हो, उसके साथ उसका नाम हो, लेकिन उनका नाम नहीं देना, ये अजीब-सी पॉलिसी है। तो मैंने एक दफ़ा लिखा इसके लिए, अल फ़ज़ल के एडिटर को भी ख़त लिखा, क्योंकि वो तो मेरी कोई नज़्में भी छापते थे, तो अलिफ़ ऐन मलिक करके, अलिफ़ ऐन मीम करके लिख देते थे। तो मैंने कहा ये अलिफ़ ऐन मीम क्या है भई? आप मेरा नाम क्यों नहीं देते? मैंने कौन सी कोई सियासी नज़्में लिखी हुई होती हैं? तो कहने लगे नहीं ये तो बस हमें ऊपर से ऑर्डर है, ये तो आप ही की सिक्योरिटी के लिए। मैंने कहा मेरी क्या सिक्योरिटी है इसमें? एक ग़ज़ल लिखी है या एक नात लिखी है, तो उसमें मेरी सिक्योरिटी को थ्रेट हो गई अगर मेरा नाम उस पे आ जाएगा तो। नहीं, हमें ऑर्डर्स नहीं है। फिर मैंने खलीफा साहब को खत लिखा। मैंने कहा ये मिसबा का मयार जो दिन-ब-दिन गिरता चला जा रहा है, उसकी वजह ये है कि किसी औरत का नाम ही नहीं उसके ऊपर दिया जाता, उसकी तहरीर के ऊपर। क्यों लिखेंगे लोग? व्हाय? क्यों लिखेंगे? जब उनका नाम तक नहीं होगा। तो कहने लगे कि ये मुझ तक जो मज़ामीन पहुँचते हैं, तो उन सब पे नाम होता है। आप इस बारे में फ़िक्र ना किया करें। बस जिस तरह से हो रहा है उसी के साथ राज़ी रहें। तो मुझे तो ये जवाब कुछ समझ नहीं आया। अब उन तक क्या हर मटीरियल पहुँचता है? किसी ने लतीफ़ा लिखा है, तो क्या उन्हें भेजा जाता है कि ये लतीफ़ा अब्दुल शकूर ने लिखा है, या ये खाने-पीने की जो ये चिकन कढ़ाई की रेसिपी जो है, ये फ़हमीदा बेगम ने लिखी है? उन्हें क्या पता किसने क्या लिखा है? तो इसका कोई ताल्लुक भी नहीं है खलीफा से। लेकिन किसी भी बात का कोई रीज़नेबल, कोई दलील पे मुश्तमिल जवाब नहीं होता। बस हर बात में जो है बस इससे राज़ी रहें, दुआ करें, अपने ईमान की फ़िक्र करें। कुछ भी करने लग जाओ, कोई भी बात करो, ईमान की फ़िक्र करें, ईमान की फ़िक्र करें। हम तो ईमान की फ़िक्र करते रह गए, अंदर से हर एक में बेईमानी निकली। ये मेरा मतलब। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये भी होता है कि लिखता कोई है और तहरीर किसी और के नाम से शाया होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि ये जो मिर्ज़ा साहब ने किताबें भी लिखी हुई हैं, लिखी हुई शायद उन्होंने हैं कि नहीं है, लेकिन उनके नाम पे शाया हुई हुई हैं। रिपोर्टें, लजना अमाउल्लाह की रिपोर्टें लिखने की जिम्मेदारी जो हर माह मुकम्मल करके मरकज़ भिजवाई जाती हैं। हर माह किया करती हैं हल्कान रिपोर्टें, हर हल्के में ले आती हैं तूफ़ान रिपोर्टें, लिख लिख के भी रह जाती हैं शिक कोई अधूरी, एक नामाए महशर हैं ये तूफ़ान रिपोर्टें। कुछ काट के लिखना है तो कुछ लिख के है काटना, करती हैं बपा ज़हन में खलजान रिपोर्टें। अपना ही लिखा अपने लिखे से नहीं मिलता, गोया किसी बीमार का हज़ियान रिपोर्टें। क्या झूठ है क्या सच है ये वाज़िया नहीं होता, मुतशाबा ही रहती हैं ये हैरान रिपोर्टें। दिखलाती हैं जब सर के रिपोर्टों पे मिला करते हैं नंबर, लिखना मेरी बहनों नहीं आसान रिपोर्टें। हर शहर नजर आता है एक शहर मसाली, दिखलाती हैं जब पाकिये दामान रिपोर्टें। बोझल सा दिलो जहन कर देती हैं अक्सर, होती हैं चली जाती हैं गुंजान रिपोर्टें। बिखरे हुए हर सिमत हैं कागज के पलंदे, सब अच्छा है सब अच्छा।
कर देती हैं। जब मिर्जा खानदान की सीरत पर मजमून शाया होते हैं तब सबके नाम दिए जाते हैं। इस वक्त सिक्योरिटी कहाँ चली जाती है? हर माह किया होती ही चली जाती हैं गुंजान रिपोर्टें, बिखरे हुए हर सिमत है कागज के पलंदे, सब अच्छा की गर्दान रिपोर्टें। अब खाना पूरी है, होती थी कभी काम की पहचान रिपोर्टें। कुछ लोग तो एक पर से बना लेते हैं कव्वा, और कुछ की सदा रहती हैं बेजान रिपोर्टें। टेंशन ने रिपोर्टों की है सुध-बुध मेरी खोई, अब जा भी चुके हैं घर से ये मेहमान रिपोर्टें। अल्लाह का कुरान में फरमान था तकवा, सदरों का मगर एक ही फरमान रिपोर्टें। मुन्ने तू जरा देर को सो जाए तो लिख लूं, आएगी अभी लेने को निगरान रिपोर्टें। जल्दी करो जानी है रिपोर्टें, अपने तो खता करती हैं आसान रिपोर्टें। ए काश हकीकत में नजर आए वो मंजर, अक्कास है जिसकी तेरी जीशान रिपोर्टें। जो हाल हकीकत में है वो भी कभी लिखो, वरना तो अधूरी है मेरी जान रिपोर्टें। मोमिन के सभी काम रिपोर्टों से मुबर्रा, लिखता है कभी इश्क का तुग़यान रिपोर्टें। मत भूल रिपोर्टों को तू लिखते हुए गाफिल, लिखते हैं मलाइक तेरी हर आन रिपोर्टें। हमने तो फकत खल्क की सोचों को ज़बां दी, इस नज्म का फिर रख दिया उन्वान रिपोर्टें। कहलाती है। मिर्जा खानदान की खवातीन मुबारका खवातीन के इंसानी हकूक के हवाले से किसी भी किस्म की सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेती। कोई एक खातून भी इंसानी हकूक के किसी अदारे की मेंबर नहीं, बल्कि इस हवाले से अगर इनसे राब्ता किया जाए तो इन्हें मना कर दिया जाता है। सिर्फ एक तंजीम की रुकनियत लाजमी है जो लजना अमाउल्ला कहलाती है, जिसका काम सिर्फ चंदे इकट्ठे करना और तरबियत के नाम पर खवातीन की ब्रेन वाशिंग करना है, ताकि अपने हकूक के लिए आवाज ना उठा सके और सवाल ना कर सके। सवाल करें भी तो वो जो इनकी मनपसंद की हो, जिसमें सच्चाई या इख्तलाफ का कोई पहलू भी नुमाया ना होता हो। अगर आप किसी तरह से मदद नहीं कर सकते तो कम से कम आवाज उठाना तो आपका हक बनता है। इस सिलसिले में एक दो खवातीन से बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमने खवातीन रेफ्यूजीज के हवाले से बात करने की कोशिश की, मगर व्हाट्सएप पर ब्लॉक कर दी गई। इसी तरह मशहूर शायर मुबारक सिद्दीकी से जो भी बात की गई तो उन्होंने भी ब्लॉक कर दिया, जबकि ये खुद रेफ्यूजी रहे हैं और जिंदगी और मौत का मजा चखने के बाद अब सुकून से खलीफा के चरणों में जिंदगी गुजारते हैं और खलीफा की हमदो सना पर मबनी नज़में लिखते हैं। खलीफा मसरूर के दरमियान मौजूदा संगीन बहरानी और हैजानी सूरत हाल जिसमें निदा और खलीफा मसरूर के दरमियान बातचीत की ऑडियो लीक होकर वायरल हुई। ये ऑडियो वाल पर मौजूद है। ये वो वक्त था जब मिर्जा ताहिर की नवासी निदा और फैजा पर मुश्किल वक्त आया तो इन्हीं खवातीन ने इनसे बात करके इन्हें अपनी भरपूर हमायत का यकीन दिलाया और हौसला बुलंद किया, जबकि दूसरी तरफ इन खानदान की औरतों ने आम औरतों से कभी इजहार हमदर्दी करना भी मुनासिब ना समझा। मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका की सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं। जैसे वहां इंसानी हकूक की पामाली जमात अहमदिया के कारिंदे कर रहे हैं, इस पर एक अरसे से अफाफ अजहर और इनकी टीम काम करके इन सब को बेनकाब कर रही है। जुमे को दिए गए खुतबे 17/12/2021 में मिर्जा मसरूर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सूरत हाल तो नजर आ गई। 1500 साल के गुलामों के वाकयात और इनको आजाद करवाने की तो बात की, मगर मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका की सूरत हाल से कौन वाकिफ नहीं है। जैसे वहां इंसानी हकूक की पामाली जमात अहमदिया के कारिंदे कर मलेशिया की खवातीन की चीखें और आहो-बका इन तक ना पहुंच सकी। गुलाम नजर न आए जो ना सिर्फ मलेशिया हुकूमत और पुलिस के रहमो करम पर हैं, बल्कि जमाती ओहदेदारों की खबास्तों का भी शिकार हो रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान में अहमदी सुकून और अमन से हैं जब तक कि वो कानून की खिलाफवर्जी करते हुए तबलीग ना करें और आम मुसलमानों को अश्ताल ना दिलाएं। अफगानिस्तान से भी अहमदी गिरफ्तारी के बाद रहा हो चुके हैं। मौजूदा निदा के वाक़े को लेकर अहमदियों की अक्सरियत अंबिया और काबरीन के पुराने वाक़यात की जगाली करते हुए मौजूदा वाक़े से जोड़ने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इनको इस बात का इल्म नहीं कि अदालत तारीख से नहीं बल्कि हकायक और सबूत से फैसले किया करती है। मैंने कहा जाता है, यानी जब खलीफा सानी बीमार हुए थे तो 9-10 साल जब वो बीमार रहे तो उनकी बीमारी के ऊपर जब लोग बात करते थे तो कहा जाता है, अहमदियों की तरफ से कहा यह जाता था कि बीमार तो क्या नबी नहीं होते। हजरत अय्यूब की बीमारी का जिक्र किया जाता था। हालांकि देखा जाए तो आजमाइश और अजाब में एक फ़र्क होता है। आजमाइश में अल्लाह ताला उस चीज़ से इंसान को बखैर आफियत निकाल लेता है और वो सब कुछ जो उससे उस आजमाइश के दौरान छिन गया होता है वो सब कुछ वापस कर देता है। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो औलाद, माल, मवेशी वगैरह जो सब कुछ उनसे छिन गया था, अल्लाह ताला ने उन्हें बीमारी से शिफा भी दी और उससे कई गुना ज्यादा करके वापस कर दिया। ये हम कुरान पाक में पढ़ते हैं। इस तरह कहा जाता है कोई इल्जाम लगे तो कहा जाता है कि क्या हजरत आयशा पर इल्जाम नहीं लगा था, तो भाई हजरत आयशा के तो कुरान ने बरी कर दिया था उन्हें उन मामलात से। तो आपके ऊपर जो इल्जाम लगे हैं उनको किसने बरी किया है अभी तक, तो या पिछले लगे थे उनको किसने बरी किया है। तो इस तरह हर चीज को खींच तान के मिला लिया जाना जो होता है ये गलत बात होती है। पूरी बात को देखना चाहिए। अल्लाह ताला अपने प्यारों को अगर इस किस्म की सूरत हाल में डालता भी है, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जो थे उन पर इल्जाम लगा, फिर वो जिंदा में चले गए और वहां वो काफी साल रहे, लेकिन उसके बाद वो मिस्र के हुक्मरान बन के उभरे और सारी जो खजानों की चाबियां थी वो उनके हाथ में थी और वो एक तरह से वहाँ पे वजीर खजाना थे या फूड मिनिस्टर थे और ये सारी बातें थी। तो इन चीजों को भी देखना चाहिए ना, क्योंकि अंजाम फैसला करता है। अंजाम फैसला करता है कि कौन सही था और कौन गलत था।
تو جب اگر انجام جو ہے وہ بخیر نہ ہو تو پھر ساری بات جو ہے وہ غلط ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء پہ اپنے اپنے وقتوں میں جو بھی الزام لگے، حضرت داؤد علیہ السلام کو بھی خدا نے بری کیا. حضرت سلیمان کے بارے میں جو لوگ الزامات لگاتے تھے ان کو بھی خدا نے، حضرت سلیمان کو بھی بری کیا. حضرت مریم پہ الزام لگاتے تھے یہودی بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا، تو اس اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بری کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ پاک اور مقدسہ عورت تھی. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو ڈیٹیل میں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے نا. یہ تھوڑی ہے کہ آدھی بات پکڑ لی، اس کو اپنے حق میں استعمال کر لیا، انجام تک اس کو لے کے جانا چاہیے. میرا تو خیال ہے دنیا کے مسائل پہ وہ لوگ بات کریں، وہ شخص بات کرے جو اپنے اندرونی مسائل حل کر چکا ہو. اپنے جماعت کے اس سے ریلیٹڈ مسائل حل نہیں ہوتے تو باہر کے مسائل پہ اور بڑے بڑے ایشوز پہ بات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ اپنے لوگ تو بہرحال آپ کے انڈر ہوتے ہیں اور آپ ان سے وہ مسائل حل کروا سکتے ہوتے ہیں اور آپ خود بھی کر سکتے ہوتے ہیں. سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جب سب کچھ ہاتھ میں ہو، وہاں کچھ نہ کیا جائے تو پھر باہر کی باتیں بڑی بڑی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اس طرح میں نے دیکھا ہے بہت سی سوشل ورکر خواتین جو ہیں گھر میں کوئی بوڑھے ساس سسر یا ماں باپ جو ہیں وہ بیمار پڑے ہیں، ان بیچاروں کو کھانا تک وقت پہ نہیں ملتا، ان کی باقی کوئی دیکھ بھال نہیں ہوتی، باہر نکل کے سارا دن سوشل ورک کرتی پھرتی ہیں. وہ بھائی چھوڑو، تم اپنے گھر کے جو بیچارہ کوئی بوڑھا ہے اس کو لک آفٹر کر لو، اپنی ساس کو یا ماں کو، اس کو بیچاری کو نلا دلا دو، اس کے کام آ جاؤ، تمہیں اس سے کہیں زیادہ فائدہ ہوگا، ثواب ہوگا. لیکن ماں کو نلانے دھلانے کی یا کھانا کھلانے کی یا بیماری میں اس کی دیکھ بھال کی تصویریں نہیں نہ بن رہی ہوتی جو اخباروں میں چھپیں، اس کی پبلسٹی نہیں ہو رہی ہوتی. باہر کسی کو سلائی مشین دینے کی پبلسٹی ہوتی ہے، اخباروں میں تصویریں چھپتی ہیں، پوری ایڈورٹیزمنٹ ہوتی ہے، تو وہ کرنے کا بڑا مزہ آتا ہے، لیکن اپنے لوگوں کے لیے کرنے کا مزہ نہیں آ رہا ہوتا. مینا لکھتی ہیں، وہ عرشی سے کہہ رہی ہیں بہت اچھا پوائنٹ ہے. جیسے ندا بیمار ہوئی تو احمدیوں نے کہا کہ خلیفہ سے ٹکر لینے کا نتیجہ ہے، پھر اللہ نے ندا کو صحت دی جبکہ اکثریت کا خیال تھا کہ اب شاید تندرست نہ ہو، جیسے کہ احمدی خوش ہو رہے تھے. یہ تو بہت ہی بیمار ذہن کی پیداوار ہے نا کہ کسی کو کوئی معمولی سے بھی اگر آپ سے اختلاف کے بعد تکلیف پہنچ جائے تو اس کو کہنا کہ یہ دیکھو ہماری سچائی کی دلیل ہے. بھائی کوئی ہیوی دلیل آپ کے پاس اپنی سچائی کے لیے نہیں ہے تو بیمار تو آپ کے یہاں بھی اگر لسٹ نکالی جائے تو ایسی ایسے بیمار حالت میں اور لوگ رہے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہر ایک کو ایک عبرت کا نشان بنے، تو ایسے ایسے لوگ بھی بیمار رہے ہیں. تو ایسی کوئی بات نہیں، ان باتوں کو کرنا ایک کچے ذہن کی اور بہت ہی ایک کمزور ایمان کی دلیل ہے. ایک سوال میرے ذہن میں آتا ہے کہ خلیفہ کا کام کیا ہوتا ہے؟ مرزا مسرور جو کہ ابھی ایک چھوٹا سا حالیہ کیس جو ہمارے سامنے آیا اس کو بھی سلجھا نہ سکے اور اس کا بھی ایک چھوٹے سے کیس کا فیصلہ نہ کر سکے جو کہ ان کے اپنے گھر کا کیس تھا، تو خلیفہ کا کام کیا ہے؟ کیا احمدی بتائیں گے کہ خلیفہ کس لیے ہوتا ہے اور خلیفہ کیا کام کرتا ہے؟ یہ جب ایسی باتیں ہوتی ہیں نا تو اس پہ خدا کی قسم انسان کو جنرلی کم عقلی کے اوپر افسوس ہوتا ہے. تو اس طرح جب خلیفہ صاحب منہ کے بل گرے تھے تو وہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ یا اس سے پہلے کسی خلیفہ کو کیا کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، وہ کس بات کا نتیجہ تھا؟ ان کے ہاں کیا میرا مطلب ہے اس طرح کے مسئلے مسائل پیش نہیں آتے. بڑے دکھ کی بات ہے، یہ بہت ہی یہ افسوسناک باتیں ہیں، یہ کرنی نہیں چاہیے کیونکہ یہ کرنی بہت ہی پست ذہنیت کی علامت ہے. مجھے یاد ہے جب میں نے گوشہ عافیت کے نام سے ایک گروپ بنایا تھا اور اس میں ساری احمدی خواتین تھیں، تو جب اس کی پالیسی جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز بنائے اس میں ہم نے یہ لکھا کہ یہاں آپ کوئی بھی سوال جو آپ کے ذہن میں آئے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بات کریں گے، ڈسکس کریں گے اور مختلف لوگ اس پہ اپنی اپنی رائے دیں گے. تو مجھے حیرت ہوئی کہ جب بعض خواتین نے کہا ہم سوال کر سکتے ہیں، کیا مطلب سوال کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ اس طرح سے. تو میں نے کہا آپ کا تعلق کس ملک سے ہے؟ وہ اب تو امریکہ میں رہ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا کہ ہماری بنیادی جو زندگی تھی نا، میرا مطلب ہے شادی ہونے تک وہ ربوہ میں گزری تھی، سوال کی تو اجازت ہی نہیں تھی. آپ نے یہ کیسے کہا؟ تو میں نے کہا ہم تو اپنے گروپ میں سوال کی اجازت دیتے ہیں، ہم تو ہر سوال کو ویلکم کرتے ہیں چاہے وہ کتنا بھی تلخ کیوں نہ ہو. تو میں تو ہر سوال کو ویلکم کروں گی، اس کا جواب دوں گی اور باقی لوگوں کو بھی اوپن یہ فیسلٹی حاصل ہے، وہ بھی جو چاہیں جواب دیں. جی، یہ محمد افضل اپل صاحب نے کوئی کمنٹ کیا ہوا ہے اور عرشی نے یہ لگایا یہاں پہ، اصلاح کے اس طرح کے موقع قوموں کی زندگی میں روز روز نہیں آتے. 100 سال میں پہلی دفعہ یہ موقع آیا ہے کہ پوری دنیا کی نظر ہم پر ہے. اس وقت اگر آپ بولیں گے تو آپ کی آواز بہت دور تک جائے گی. اصلاح کا یہ موقع شاید دوبارہ کبھی نہ آئے. آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی تلافی کا یہی طریقہ ہے. جی سمینا جی، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ دے کر اس پروگرام کو جس حد تک ہو سکتا ہے بھرپور بنا سکیں. تو الحمدللہ ہم سب ایک ٹیم کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے جو اس گروپ کو بنانے سے تھا وہ یہی تھا، اویئرنیس پیدا کرنا اور چیزوں کے اوپر بے لاگ تنقید کرنا. اور اپنے اوپر بھی ہم بھی بے لاگ تنقید سہنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بھی سمجھتا ہے اگر ہم کوئی غلط بات کر رہے ہیں تو دلیل کے ساتھ نشاندہی کرے. یہ کہتے رہنا جھوٹ ہے بکواس ہے، یہ تو کوئی بات نہیں ہے. یہ تو کہنے والا خود اپنی حماقت کا اعتراف کرتا ہے کہ اس کے پاس اس کے سوا کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. جی بہت شکریہ آپ سب کا، سننے والوں کا اور ساری ایڈمنس کا اور عرشی صاحبہ کا اور سمینا صاحبہ کا اور سب کا. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. میں نے آپ کا یہ سارا پروگرام سنا، بڑا اچھا دلچسپ پروگرام تھا. تو مجھے خیال آیا کہ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پہ گئے تھے تو پیچھے قوم نے ایک بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد اس قوم نے اس خلافت کے بچڑے کو معبود بنا لیا ہے. اب یہ اس خلافت کے بچڑے کو پوجتے ہیں اور یہ اس خلافت کا جو 5واں بچڑا ہے
और इसकी तो बदतमीजी की इंतहा आप देखें कि बोलने तक की तमीज नहीं है, तुम करके हर बंदे को बात करता है। ये वो पांचवा खिलाफती बचड़ा है। जी अस्सलाम वालेकुम जी, अकबर खान साहब यही नाम है अगर आपका, तो अगर गलत लिया उसके लिए माजरत। जी भाईजान, हमने पूरा प्रोग्राम सुना, हमने तो यही सुना था कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा ना, लेकिन ये बहनों ने जो काम उठाया, बेड़ा उठाया ना, माशाल्लाह, इससे समझदार लोगों के लिए तो काफ़ी फ़ायदा है। और कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती कि जमात अहमदी के लोग ये क्यों बोलते हैं कि झूठे झूठे, या तो मेरे ख्याल से उनकी रोजी रोटी इससे लगी हुई है, या फिर ऐसा हो सकता है खुद भी डिफ़ाल्टर हो सकते हैं वो लोग। तो कुछ ना कुछ मामला ज़रूर है ना कि वो आगे आगे बात नहीं करते या कुछ नहीं करते, जहाँ तक मैं समझ पाया। हो सकता है मेरी समझ गलत हो।